Hi everybody. So I'm Professor Sandeep Gupta teaching you C programming. Now this is chapter number 3, operators and expressions. What we'll do is we'll do a very quick brush up of this particular chapter. I assume that you have joined our batches late, and because you have joined the batches late, you need to understand the contents of this particular chapter. But right now, what we'll do is we'll just do a quick brush up of this particular chapter. And later on, what you can do is you can attend this lecture again physically in our other batches, or maybe you can see a complete 3-hour recording of this particular chapter. Right now, we'll be just a little quick. And the only purpose of this particular session is that you should understand whatever we teach you after this chapter. Okay. So in maximum half an hour, we are going to complete this particular chapter. Okay, let's start. So the name of this chapter is Operators and Expressions. Okay, so let's take an example of something like A is equal to B plus C. ठीक है? अभी ये जो expression है ना, इसमें this equal to and this plus are called operators. So what is an operator? An operator is a symbol which performs some kind of operation. All right. So plus is the operator which performs addition. This is an operator which performs assignment. Then the next term which you need to understand over here is an operand. So what is an operand? An operand is basically a value on which operation is done. So if you really understood what I said, can you tell me that for the plus operator, which are the operands? So for the plus operator, the operands are B and C. And once again, for the plus operator, A is not an operand. Why? Because the plus operator is not going to act on A. It is going to act only on B and C. Okay. So basically, operators are those symbols which perform some kind of operations, and operands are values on which operations are done. So you understood what is an operator, what is an operand. Now let's understand the meaning of the word expression. Expression. So what is an expression? An expression is either a variable or a constant or a group of variables or a group of constants or a group of variables and constants connected by one or more operators. So in C programming, a single variable is an expression. Constant is an expression. Group of variables, group of constants, group of variables and constants connected by operators are called expressions. So ये सब, all these are valid examples of expressions. ठीक है? So till here you understood what is an operator, what is an operand, and what is an expression. By the way, in this particular chapter, we'll be studying different categories of operators. Okay. So in exam, from this particular chapter, you will be getting exercise questions. Now, once you understand what is an operator, okay, now let's explore the first category of operator, which is called arithmetic operators. Arithmetic operators, okay. Now, there are 5 arithmetic operators in C language, that is plus, minus, multiply, divide, and modulus. Now, I don't need to explain you anything about plus, minus, multiply, divide, because you know how they work. Okay, 2 plus 3 is 5. 5 minus 1 is 4. 2 into 3 is 6. 10 divided by 2 is equal to 5. Okay, so you know how they work. Just one thing, that here onwards, whenever you give the multiplication symbol, you should give it as an asterisk. And the division symbol should occur as a slash, Okay. All right. Now let's talk about this one, which is new for you. अब इसको बोलते हैं modulus operator, and this gives you the remainder after integer division. अब इसका मतलब क्या है? So to understand this, let's take an example of something like 12
modulus 5. 12 modulus 5. Now, when you do 12 modulus 5, the dividend is 12, or I will say the first operand is 12. The divisor is 5. That means the second operand is 5. Okay. Now, when you are doing modulus, the quotient must be an integer. In fact, all the associated values must be integers. 12, 5, dividend, divisor, quotient, remainder, all must be integers. That is a rule. So now, can you tell me what will be the, okay, let's do one thing. Let's not do 12 modulus 5. Let's do 13 modulus 5. Okay. So if you're doing 13 modulus 5, can you tell me what is the quotient over here? So the quotient will be 2. So 5 into 2 is 10 and the remainder is 3. Remainder is 3. So I can now say that 13 modulus 5 is equal to 3. Come on, let's see how much did you understand. Can you tell me what is 18 modulus 7? Come on, can you tell me? So that will be 4. Now how 4? 7 twos are 14. Okay, and the remainder is 4. All right. Can you tell me what is 18 modulus 6? Come on, it's very simple. So that's 0. Remainder is 0. So the modulus operator gives us remainder after integer division. After integer division का मतलब ये होता है that the dividend, that the divisor, that the quotient, that the remainder, all are integers. Okay. So these are the 5 arithmetic operators. Okay. इसमें से पहला चार तो तुमको आता है and I taught you this one just now. Now, after you understand arithmetic operators, let's talk about relational operators. Okay. And after that, a few. Now let's talk about relational operators. Okay. Now, so there are 4 relational operators in C, that is less, less than equal to, greater than, and greater than equal to. Okay. Now, why these 4 are called relational operators? Because they find out the relationship between the two operands. Now, let's say I write a statement like this. Int a equal to 5, comma, b equal to 6, semicolon. I hope you remember that this statement is called declaration. Now, let's say I write an example, a less than b. Okay, so first of all, we'll substitute this 5 less than 6. Okay, now here onwards, whenever you read this line, listen to me carefully. Whenever you read this line, you will read it like this. How? Is 5 less than 6? Okay, is 5 less than 6? Now, if I ask you a question, is A less than B? Okay, then your answer will be either yes or no, no matter what the value of A and B is. Okay, so such expressions, okay, whose answer is either yes or no, such expressions are called logical expressions, also called conditions. I repeat, such expressions whose answer is either yes or no, they are called logical expressions or they are called conditions. Okay. So basically, this is a condition. We are asking the C compiler, is 5 less than 6? Now 5 is definitely less than 6. So over here, we will say that the expression is true and its value is 1. C language में क्या होता है ना, C compiler क्या करता है, हर ट्रू एक्सप्रेशन को वैल्यू 1 से रिप्लेस करता है, हर फॉल्स एक्सप्रेशन को वैल्यू 0 से रिप्लेस करता है. ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड इट्स वैल्यू इज 1. Now let's take a second example. Let's take a second example where I write something like this. Okay, I write a plus 2. So a plus 2, or just a minute. Okay, let's say I write something like a greater than equal to b
plus b plus 2. Okay, so सबसे पहले do the substitution over here. So this becomes 5 greater than equal to 6 plus 2. All right. The first thing which you need to understand is that when you write greater than equal to, don't write it this way. You used to write it this way in mathematics. You are supposed to write it this way. And when you write greater than equal to, this is only one operator. These are not two different operators. Okay. So now over here, one operator is this one. Another is plus. Okay. This is relational operator. ये देखो relational. And this is arithmetic operator जो हमने ये वाले पेज पे देखा था, ये वाले पेज पे देखा था, देखो ये वाला. ओके, अभी होता क्या है in C language, the precedence, see the word, the precedence of arithmetic operator is higher than relational operators. अब तुम बोलोगे precedence क्या है, तो 12th में आई एम श्योर तुमने बोर्ड मास करके कुछ पढ़ा था, तो उसी चीज को सी लैंग्वेज में प्रीसीडेंस बोलते हैं. ओके, तो इधर क्या होगा, प्लस पहले होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 greater than equal to 8. Now don't forget that this is a question. Somebody is asking you a question, is 5 greater than equal to 8? So come on, what your answer will be? So your answer will be that the expression is false and its value is 0. Okay, so these are the 4 relational operators using which we can form conditions, also called logical expression. अच्छा, चलो अभी just like relational operator, we have one more category जिसको बोलते हैं equality operator. अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि just like relational operator we have equality operator? वो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट कंडीशंस. सो देयर आर टू इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं इक्वल टू और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल. ठीक है, अभी एकदम सिंपल है. चलो सबसे पहले आई वांट यू टू रीड दिस इन योर माइंड. ओके, तो अपने माइंड में, या ठीक है, जोर से इसको रीड करो. कम ऑन, हाउ विल यू रीड दिस? सो इसको ना इस तरह से रीड करेंगे, इज 6 इक्वल टू 6. तो ये भी एक क्वेश्चन है, इज 6 इक्वल टू 6? यस, द एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड इट्स वैल्यू इज 1. अभी इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको हम कैसे रीड करेंगे? कम ऑन टेल मी. इज 6 नॉट इक्वल टू 6, ऐसे. ओके, इसको इस तरह से रीड करेंगे, इज 6 नॉट इक्वल टू 6. हाँ, तो अब तुम मेरे को बोलो, इज 6 नॉट इक्वल टू 6? सो द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड इट्स वैल्यू इज 0, ऐसा. सो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ना, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, और ये चेक करता है वेदर द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल. इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, और ये चेक करता है वेदर द टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल. तो जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, इसका अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है तो ये ट्रू देगा. बट ये जो नॉट इक्वल ऑपरेटर, इसका दोनों ऑपरेंड्स अगर इक्वल है तो ये फॉल्स देगा. लेट मी सी, तुम्हारा ध्यान है या नहीं है? समझो मैंने ऐसा लिखा, 5 नॉट इक्वल टू 6. ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, सोचो. सो इसका आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू इज 1. ओके, so these were the equality operators. Okay, अब equality operator भी just like relational operators, equality operator is also used to create logical expressions, also conditions. फिर एक बार याद करो, logical expression या condition, हम उस expression को बोलते हैं जिसका आंसर true false होता है. Let me see, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? समझो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने लिखा a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई डी. समझो मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो मेरे को बोलो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है या नहीं है? चलो, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, आप सोचो, इज दिस अ लॉजिकल एक्सप्रेशन? अच्छा, अब तुम में से हो सकता है कोई कोई मुझे बोलेगा, तुम में से कोई कोई मुझे बोलेगा, अरे सर ABCD का वैल्यूज क्या है? ओके,
तो प्लीज एक बात समझो, एबीसीडी का वैल्यूज कुछ भी होने दो, एबीसीडी का वैल्यूज कुछ भी होने दो, उससे तुम्हारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज नॉट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ कंडीशन। व्हाई? क्योंकि इसका जो आंसर है वो ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता है, इसका आंसर कोई एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, ऐसे वाले, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं होता है। और ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं, इनको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। अब अगर तुमको लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है, ओके, तो उसके लिए तुम ये ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते, ये वाले। उसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा या तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, या तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ओके, ये दोनों, ऑलराइट, ये दोनों, ऑलराइट, या फिर एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी प्लीज एक सिंपल चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, लॉजिकल ऑपरेटर्स अलग चीज है, लॉजिकल एक्सप्रेशन अलग चीज है, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब वो एक्सप्रेशन जो ट्रू फॉल्स होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, तो ये देखो, देयर आर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल और। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुमने अपने 11th 12th में भी शायद किया है, तो तुमको ये पता है। अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, दे आर यूज टू कनेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस। आई रिपीट, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कनेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसका क्या मतलब है, तो वो देखते हैं। समझो समझो, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने लिखा 6 इक्वल टू 6, हाँ, एंड 5 ग्रेटर देन 6। चलो पहले मुझे ये बताओ कि ये पूरे एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स हैं। 3 ऑपरेटर्स है, देखो, इक्वालिटी, फिर उसके बाद लॉजिकल एंड, फिर उसके बाद रिलेशनल, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, सबसे पहले देखो क्या होता है ना, प्रीसिडेंस याद है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो सबसे ऊपर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके नीचे रिलेशनल ऑपरेटर, ये देखो रिलेशन, उसके नीचे आता है इक्वालिटी ऑपरेटर, और उसके नीचे आता है लॉजिकल एंड। तो सबसे पहले ना ये इवेल्युएट होगा। चलो फटाफट बोलो, इज 5 ग्रेटर देन 6? फॉल्स, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 0। इज 6 इक्वल टू 6? ट्रू, सो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 एंड 0, यानी ट्रू एंड फॉल्स। आई होप तुमको याद होगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये शायद तुमने 12th में पढ़ा होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, देखो ऐसे, ट्रू ट्रू एंड ट्रू तुमको देगा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स तुमको देगा फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू तुमको देगा फॉल्स, ओके, फॉल्स एंड फॉल्स तुमको देगा फॉल्स। इसका मतलब क्या, लॉजिकल एंड तुमको सिर्फ तभी ट्रू देगा व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, व्हेन बोथ द साइड्स आर ट्रू, ठीक है। तो मुझे बोलो 1 एंड 0, ट्रू एंड फॉल्स, क्या हुआ, फॉल्स। इसका आंसर ऐसा आएगा, द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये सेम एक्सप्रेशन लेते हैं, 6 इक्वल टू 6 और 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये लॉजिकल और हो गया। अब लॉजिकल और कैसे काम करता है, तो ये देखो, ट्रू एंड सॉरी, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, ओके, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। सो बेसिकली लॉजिकल और जो है ना, वो तुमको ट्रू तभी देगा व्हेन एटलीस्ट वन साइड इज ट्रू, व्हेन एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू। सो ओवर there, tell me what is the answer. So the answer is true, okay, or 1, okay. So these were, देखो, हमने देखो क्या क्या किया, अभी हमने किया सबसे पहले arithmetic operators, then we did relational operators जो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं,
then we did equality operators, and then we did logical operators. Okay. Now let's go to the next category जिसको बोलते हैं assignment operators. ठीक है. अभी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू सिंबल. तो आज के बाद जो इक्वल टू सिंबल है ना, इसको तुम इक्वल टू नहीं बोलोगे, इसको तुम बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड ये जो है ना, ये वाला, इसको इसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. तो आज के बाद इसको हम बोलेंगे इक्वल टू ऑपरेटर, इसको, एंड इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर. अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरी 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 सिंपल. it assigns it assigns the expression on the right hand side to the variable on the left hand side. तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वेरिएबल है, इसके राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है. तो बेसिकली वो क्या करेगा, जो भी राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड को दे देगा. सिंपल. सो ए विल बी असाइंड x+2. अब इधर एक सिंपल बात तुमको याद रखना है कि जब भी तुम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मस्ट बी अ वेरिएबल, ऑल्दो इट्स RHS कैन बी एनीथिंग, राइट हैंड साइड कैन बी एनीथिंग. तो एनीथिंग का क्या मतलब है? तुम ऐसा लिखोगे चलेगा, देखो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है. तुम ऐसा लिखोगे चलेगा, देखो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है. तुम ऐसा लिखोगे चलेगा, देखो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है. ठीक है, सब चलेगा. बट इसका जो LHS है वो ऐसा नहीं हो सकता है. तुम ऐसा नहीं लिख सकते B+2 इज इक्वल टू C+9 ऐसा. ओके, दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए. तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो उसका आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि जब तुम कुछ चीज असाइन करते हो, ओके, तो एक वेरिएबल को ही असाइन कर सकते. ओके. अभी इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. अब इसके सिवाय ना सी लैंग्वेज में देयर आर 5 मोर ऑपरेटर्स. ये देखो कौन सा 5 मोर, ये देखो. प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल. ये जो 5 ऑपरेटर है ना, 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. अब ये काम कैसे करते हैं? सिंपल. समझो मैंने ऐसा लिखा A+=B. तो पहली बात तो ये कि ये जो प्लस इक्वल टू तुमको दिख रहा है ना, ये एक सिंगल ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, दो नहीं है. अच्छा, बट इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग है A=A+B ऐसा. अब तुमको सच में समझा तो मुझे बोलो. समझो मैंने लिखा A मॉड्यूलस इक्वल टू B. तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा A=A मॉड्यूलस B ऐसा. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो अब अगर तुमको कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज में कितना कितना ऑपरेटर्स है, तो सी लैंग्वेज में टोटल टोटल आई एम सॉरी, अगर तुमको कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज में कितना असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, तो द आंसर इज 6. 6 कैसे? ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला, एंड ये है 5 शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. Okay, so I hope you understood this. Now let's go to the next operator, slightly difficult, जिसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर. अभी जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, कंडीशनल ऑपरेटर, इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क कोलन, क्वेश्चन मार्क कोलन. ठीक है. एंड द कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी का मतलब ये 3 ऑपरेंड्स पे, 3 वैल्यूज पे काम करता है. अब इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 2. ठीक है. समझो हमने ऐसा कुछ लिखा, हमने लिखा A लेसर देन B, क्वेश्चन मार्क A+2 कोलन B+7. ठीक है. Now listen to me carefully.
अभी ये जो चीज है ना, ये हाँ, इस चीज को बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। आई रिपीट, इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसका जनरल फॉर्मेट ऐसे होता है। कैसे, ये देखो, E1 यानी एक्सप्रेशन वन, क्वेश्चन मार्क, E2, कोलन, कोलन, E3। ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। एंड कंडीशनल एक्सप्रेशन इज क्रिएटेड यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, अभी कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है तो सुनो। ये क्या करेगा, पहले मैं तुमको इन जनरल सिखाता हूं, वो नहीं समझाता हूं, एग्जाम्पल लेंगे। अब इधर क्या होगा ना, सबसे पहले कंपाइलर चेक करेगा वेदर E1 इज ट्रू और फॉल्स। बाय द वे, जो E1 है ना, ये नॉर्मली कंडीशन होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो इफ E1 is true, the compiler will calculate the value of E2, and the value of E2 will become the value of the entire conditional expression. If E1 is false, the compiler will calculate the value of E3, and the value of E3 will become the value of the entire conditional expression. So basically, इधर है ना एक if else का concept है. If true, then select E2, else select E3. Now I'm sure बहुत लोगों को नहीं समझा है, तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। A5B2, तो पहले ये देखो, ये E1 है, ये देखो E1, ये E2 है, ये देखो E2, ये E3 है, देखो E3। तो पहले क्या करते हैं ना, सिर्फ सिर्फ E1 को सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, 5 ग्रेटर देन, लेट मी चेंज द इंक, इसको मैं रेड कलर में चेंज करता हूं। ये देखो, 5 ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इधर सेम A+2 कोलन B+7, ठीक है। नाउ इज दिस एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सो मैं ऐसा बोलूंगा, बिकॉज E1, इसको E1 बोलते हैं, E1 का मतलब एक्सप्रेशन वन। बिकॉज एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स, therefore value of कंडीशनल एक्सप्रेशन, ओके, ये पूरे को कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, बोलो क्या, E2 या E3? E3, which is B+7, which is 2+7, which is equal to 9. All right. So I hope you understood how the conditional expression works. अब उसके बाद the last thing to be understood over here is library functions. Library functions, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको ये समझना है कि फंक्शन किसको बोलते हैं। So function is like a small program which takes some input and gives back some output. A function is like a small program which takes some input and gives back some output. फंक्शन समझाने के लिए ना हमेशा आई टेक एग्जांपल ऑफ शुगर केन जूस मशीन। अब जो शुगर केन जूस मशीन है, उसमें एक साइड से जाता है शुगर केन, तो वो उसका इनपुट हुआ। दूसरे साइड से जूस बाहर आता है, तो वो उसका आउटपुट हुआ। तो उसी तरह से सी लैंग्वेज में ना, देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शंस which will take some input and will give back some output. Okay, तो जो कॉमनली यूज फंक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, okay. तो सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है जिसका नाम है POW। POW स्टैंड फॉर पावर। अभी ये जो पावर फंक्शन है ना, वो दो वैल्यूज लेगा एज इनपुट। तो समझो तुमने इसको इनपुट दिया 2,3, हाँ, तो ये तुमको कुछ आउटपुट देगा ना। क्या आउटपुट देगा? तो ये तुमको आउटपुट देगा 2 raised to 3 विच इज इक्वल टू 8। तो तुम अगर उसको 2 3 दोगे तो वो तुमको 8 देगा। तो इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। फिर एक और पॉपुलर फंक्शन है जिसको बोलते हैं SQRT। SQRT, ठीक है। SQRT स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट, इट स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। अब समझो, अच्छा, इसको है ना हमेशा एक वैल्यू देते हैं इनपुट, इसको हमने दिया 9।
तो गेस करो ये तुमको वापस क्या देगा, ये तुमको वापस देगा 3, द स्क्वायर रूट ऑफ 9. ओके, सो बेसिकली दीज ऑल आर लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिर्फ ये दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं. ओके, जो डिटेल में हम बाद में देखेंगे. अच्छा, अभी अगर तुमको लाइब्रेरी फंक्शन में प्रोग्राम में यूज करना है ना, तो तुमको हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो दो फंक्शंस है ना, ये मैथमेटिकल फंक्शंस है. तो इनको अगर तुमको अपने प्रोग्राम में लिखना है, तो तुमको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच. हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच एस. ओके, so basically this was the entire chapter of operators and expressions which I have taught you briefly. I repeat briefly. इसका डिटेल्ड वीडियो बाद में तुमको देखना पड़ेगा, एंड जब डिटेल्ड वीडियो देखोगे तो नोट्स भी कॉपी करना. ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, if you want you can just take a screenshot of all these screens for reference. Okay, so this is the first one, take the screenshot. Second one, third, fourth, fifth, sixth, and 7. All right. So that's it. Okay. Thank you very much.